Hi, this year UPSC Civil Service Examination Prelims is coming on 24th of May 2026. From today, it is 150 days away or roughly 5 months, and I am going to help you to strategize how to clear prelims using the test series of Elevate IAS revision test series. If not this test series, any test series, how do we use these 5 months to train ourselves to clear the prelims? I am Abhilash, your UPSC Civil Service Examination Mentor, and let's follow this session. I'm going to take the help of this session because what I have designed this session is all about how we handle the UPSC Civil Service Examination prelims paper. And this is a strategy session and a learning session. I told you in the beginning that we have around 150 days in our hand from today onwards. So, what that means, we need to plan our 150 days in such a way that we are able to learn, we are able to create notes, we are able to effectively revise for this prelims examination. And for the day of examination, we are confident that we are going to crack. So, if you are a first time aspirant or you are a repeat aspirant, for you, the timeline, all the timelines remain same. I must tell you that the challenges or the things which you hear about this exam will always remain true to itself. It will always be unpredictable. It will always make you feel that this is the toughest paper, and it will always make you feel that you're not going to clear the exam. But this is common with everyone. What changes is how you prepare and the strategy on which you prepare for this examination. So it is not just a hard work, but it also requires strategic planning, smart preparation, and your exam temperament. So today we are going to talk about that. Doesn't matter what is your, if you have been a first time aspirant, or it also doesn't matter आप इंग्लिश मीडियम के हैं कि हिंदी मीडियम के. मैं जिस तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ये एक स्ट्रैटेजी हाउ टू हैंडल दिस पेपर जिससे कि हमें पेपर क्लियर करना है. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न. So what is the exam pattern? We all are aware that it is a MCQ, multiple choice question paper, and there is a paper one, general studies paper one of 200 marks, which has 100 MCQs, and then this is counted for your qualification, elimination and qualification. While there is another second paper called Civil Services Aptitude Test (CSAT) paper two, which is again 200 marks but 80 questions, and it is qualifying in nature. That is, you have to just clear more than 33% marks. Then we know the reality of the exam that it is a negative marking reality. Every wrong answer costs you one third of the deduction. And this is where the exam or the strategy comes into action. The prelims is more is a game of accuracy over how much questions you are attempting. The strategy of how and where to prepare or practice is what we need to design from today. Then another thing to which you can ignore and also be aware of is that around 5 lakh people are going to give this examination across the country on that day, and around 13,000 to 15,000 will only qualify for this exam. So people who are practicing or preparing to clear the exam, not just give the exam or understand how tough it is, are definitely in the mindset of coming into this 15,000 people. People who are thinking this is my first attempt, let me see this exam, फिर मैं बैठ के तैयारी करूंगा, I will start from scratch again, I will begin again. You are just losing time in this attempt. And I must tell you, with age, your attempt, if you keep on, what happens is, if you are your first attempt should be the most serious. For that, you need to have right information.
Now, if you feel that नहीं मुझे coaching नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे all that thing you have made in your mind, and you think by starting just studying like that, you will complete it. What you are going to do is you are going to chase completion of syllabus, completion of syllabus, and this is where the maximum people give up, because syllabus is never is going to be complete, and it is always increasing, and that adds to the stress and anxiety, and that level of stress and anxiety has never happened before in the entire academic career of yours, from schooling to college. Because now, when you are preparing for this exam or giving this exam, you would be the chosen one who will be preparing for the exam, and anxiety will be there because there are other friends of yours who chose not to give this exam but go with a job or go with higher studies and persist things like that. They're at a better position, and comparison and things like this creates the challenge. So, while we are talking about this exam, I want to tell that if this is your first attempt, be very serious from the day you watch this video, from the day you take an action. First level action is watching this video and creating this strategy. How does somebody prepare from any part of the India? वो करेगा क्या? The first and foremost thing is to build a strong foundation. And this laying of the groundwork can happen in around 30 to 40 days. Around 1.5 months, you'll say. So what you have to study here? What you have to study is you have to take care of all the NCRT books, which are, and the relevant topics which from which chapters which come, and these standard books. Lakshmikant, Indian economy, you can use this or any other thing. For geography, this, and materials for IGNU or Shankarais. So these are the resources that are going to become your core resource, which you have to look in these 30-40 days. Then current affairs, you know that current affair comes from the newspaper and other updates which happen monthly. Either you can go through the uh, you know uh, current affair bulletins which is available, or you can just practice questions of current affair as of now. If you have not yet built the reading habit from paper, but because this is must, slowly you have to build. I hope I'm clear on how to build a strong foundation. Now, this is, initial stage में it is only about you. How you are going to take your time out, कैसे manage करोगे time, note कैसे बनाना है. Don't run around all these things. एक किताब कॉपी लेनी है, put what chapter you are studying, उसके notes बनाओ और start करो. People who have taken GS Foundation plan would already getting their daily email with how all the chapters on the notes, and it's a free plan. But I'm telling you, it is, don't rely on somebody else's expertise. Always believe in your own self, your own ground. You can do it all by yourself. Next phase comes is little after the surfacial knowledge from the building foundation, going deep and interlinking knowledge. That is geography to economy, then polity and governance to policy, like that, sociology, all that thing. Now you will see that you can, you have to build that kind of knowledge. So static part of syllabus needs to be adjusted to the current part. Here, the first and foremost thing from where, because why we are reading all this thing, you need to give yourself a goal and approach. Previous year paper analysis, 10 years paper you have to analyze. If you can attempt it, fantastic, or otherwise just read it like book. 10 years paper, paper 1, and CSAT paper, do 10 years paper and go. Definitely you'll clear the fear of CSAT will go away. You have to do it. You have to do 100% CSAT, because even if you don't go by time, but you know क्यों ये सवाल कैसे बना है, कैसे करना है, what are the steps to solve it and do it.
in my test series which I'm talking, I'm sending CSAT papers where I will be also giving video solution, not just ABCD type, but how we have arrived at the solution. You can sit along and do the solution along with running the video. Then comes note making. वो the copy which I mentioned in the last slide, वो आपकी notes की copy है. ये आपकी बनाई copy है. This is going to have all the details, all the learnings, all the analysis, all the topics which you have touched upon. And once you start doing that, you have to see what is your capacity of learning. That will only happen when you test yourself. एंड छोटे छोटे क्विज आप सेक्शनल क्विज लेंगे 50-50 क्वेश्चन के या लाइक दैट यू किताबों के पीछे ही हैं वो क्विज क्वेश्चंस और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी होते हैं you do all that topic wise you will realize how much is your retention, how much is your recall. This is very much important. हमने टॉपिक पढ़ा, हमको टॉपिक रिटेंशन हुआ, उसका फंडामेंटल क्लियरली हुआ कि नहीं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है. बिकॉज वंस यू नो ए टॉपिक फंडामेंटली, देन आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर है. उसको आप कैसे भी घुमा तरा के यूपीएससी पूछे, फंडामेंटल्स तो चेंज नहीं होने वाले. दैट यू कैन आंसर और एलिमिनेट द क्वेश्चन इन दैट. वी विल कम टू नो अबाउट वेरियस टेक्निक्स इन द नेक्स्ट फेज ऑफ सेशन. फिर उसके बाद वंस यू हैव कंप्लीटेड योर major syllabus portions and things like that, it is time for full length, full mock length. तो अगर हम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, 40 days is the first foundation, another 40 days is this, and then another 50 days is this phase of practice and revision. Minimum I say that एग्जाम कंडीशन में आपका एटलीस्ट 5 मॉक्स अप्रैल और मई में, आप अप्रैल 12 से अगर ये अप्रैल 11 से स्टार्ट करें मई 9 तक, 5 मॉक्स आपको मिनिमम फुल अटेम्प्ट देना है डेली संडे, 2 सेट में, मॉर्निंग सेशन एंड आफ्टरनून सेशन एज पर द एग्जाम थी. एग्जैक्टली लाइक एग्जाम. यू हैव टू बिल्ड द स्टेमिना कि आपका मेंटली आप प्रिपेयर हो कि उसी वक्त मैं तो रात को पढ़ता हूँ, मुझे रात में सब एक्टिव रहता है, सुबह कुछ याद नहीं रहता, नींद, ये सब बहाने नहीं चले. एग्जाम तो सुबह 9 बजे होगा, तो एट 9 o'clock योर ब्रेन शुड बी सुपर एक्टिव. So for that, because the months of summer will be happening that time in India, so better you start practicing mocks in month of April. And after completing the test, just don't take rest. What you have to see is immediately see, correct, analyze where you went wrong, what worked for you, what didn't work for you, what did you learn, how much questions did you. No, all numbers is not important. Important is the analysis of what was your approach, where did you go, what went wrong, how many easy questions did you identify, how many tough questions did you identify, how many medium questions do you identify, where was the confusion. Confusion was in English, confusion was in absence of knowledge, or confusion was the way the question was framed. So you can find all these things, analysis आपको करना है. That is where you will get the heads up कि जब आप रियल एग्जाम देखोगे यूपीएससी का, then you will not find or you will not be feeling that challengeable कि क्या हो गया, मुझे तो समझ नहीं आया, पता नहीं क्या दे दिया क्या. Lot of the people do this. They, because of the exam pressure, a simple in question which is written in English and which is half page length, in the panic mode they are not able to read it. उसका फॉल्ट किसको जाएगा, नॉलेज के एब्सेंस को जाएगा कि इट्स योर फॉल्ट. क्वेश्चन माइट बी द इजी वन, जस्ट बिकॉज दे हैव रिटन फॉर हाफ पेज, सीइंग द लेंथ इटसेल्फ दे स्टार्ट फीलिंग ये तो मुझसे नहीं होगा. So once you do this in the third phase, your revision, what you have written, and as I mentioned, जो note copy आपने बनाई है, you have to check it every weekend. मैंने आज क्या नया सीखा, मैंने पहले क्या सीखा था. You keep on, because recall is the skill you which you have to practice. Retention is the learning capacity. Slowly बढ़ता है retention, and all this needs revision. Revision is key to success. There's no other way, and without
doing this. टाइम मैनेजमेंट डेफिनेटली, हर क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम लगता है, 2 घंटे में जो क्वेश्चन पेपर करना है, हाउ शुड आई स्टार्ट इट इन सी सैट, माई स्ट्रेंथ एरिया इज this mathematics or English or logics. I should begin with that. Try to play the game or play the exam on your strength. See, nobody is going to be perfect. Nobody is going to be perfect. But people who play on their strength will always be ahead. And this exam is to be ahead, not about perfection. So you will see that if you are able to play on your strength, you will immediately able to cross the mark of 80 range, 80 plus. And then comes little critical brain, which will take you to 90 plus, and that itself is enough to clear the paper. Coming to next paper, CSAT. The challenge with CSAT is, every year, even if it's qualifying in nature, some or other way, good students ignore the, CSAT. I mean, assuming that, okay, I am an IIT and I know mathematics very well. CSAT somewhere is thought only about mathematics. CSAT somewhere is thought that, okay, this can be done, मैं तो कर ही दूंगा, तो IIM से pass किया हो, like that. Or any which way. Many people feel that, CSAT, is, uh, they don't practice it or they don't practice it enough. But UPSC has this habit. If you are weak, if you are assuming this thing on the moment we assume, UPSC will play the game in that area. For last 3 years, they have made CSAT as one of the most toughest thing to qualify for qualifying mark itself. We know what has been the challenge. Sometimes the mathematics is super high. There are around 15 questions of mathematics. In those 15 questions, around 9 questions are of very high grade. Then the moment you are not able to solve 5 to 6 questions, all the ego which you carried for thinking that it is all maths, I can do this, you start playing around it and you are unable to complete the paper or unable to focus back. Then next they focus on how to make English tough. They made lot of big passages, multiple passages, and lot of big and tough English passages. Until unless you are not silently thinking, silently absorbing what the exact meaning or what is the paragraph trying to say, you are unable to crack the question. So you spend time reading the entire passage, reading the entire question set, but you are unable to answer it. So you lost it. So like this has been the challenge of the CSAT in the last 3 4 years. Now what happens the moment people have faced this challenge, they come out of the exam hall and they say, "Oh my God, CSAT बहुत tough था, पता नहीं क्या होगा." People who have not even ever given exam, they also start feeling scared. जिन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं ना पेपर देखा है, अरे यार इसको टफ लग रहा था, मेरे को तो क्या ही लगा, मेरे से तो होगा भी नहीं. And that is how CSAT has now gained this new identity of being the tough nut to crack. The problem with CSAT is even if you practice it, like you practice any subject, you'll not master it because it is a mix of multiple areas of question. It's an aptitude test. So we have a strategy for it as well. But the first and foremost strategy is, it's a mental practice. So your mental brain should always be active. So 30, there are some numeric exercise. There are practice CSAT for around 30 to 40 minutes per day. You see that every time, every month, or every week, you read books or comprehensive passages in a timed fashion. Do some basic mathematical concepts, reread it, re-understand it, do some complex question around it. And then I told you the first and foremost thing is to last 10 years paper. In our test series of Elevate IS test series, we are going to get 18 CSAT papers and 10 years PYQ is included in that. First, we are completing PYQ. Simple logic is to get aligned with what the UPSC standard is. So first is 10 years PA. And then we will create other 8 papers as per the trend and things like that. But once you have the practice of or confidence of clearing 10 PYQ of CSAT,
you will definitely gain that I am going to qualify 33%. And that is what is needed. You have to go in exam to clear the exam with that confidence. Now coming to prelims, that as I mentioned, चैलेंज सबसे ज्यादा होता है. हम ये भी किताब पढ़ रहे हैं, नया रिलीज आ रहा है, ये अभी इसका एडिशन आया, ये किताब अभी आया. ये पीपल स्टार्ट कलेक्टिंग लॉट ऑफ बुक्स, लॉट ऑफ नोट्स. If you actually do some, as I mentioned in the start, that core books, once you have done your core books, then your own notes, these are the only ones you have to keep on revising and reading it. And then enrich, only enrich. You don't need to buy, you don't need to keep on buying new book and start from scratch. No, multiple sources करने से you will get only confused, nothing else. Core books plus notes. Core books are what I mentioned, including NCRTs or NIOS books. It's enough. And then once your fundamentals are clear, then notes and current affairs. That's it. And that is where your quality and retention will come up. Revision notes, definitely. I told you that you have to create your own copy of notes, and every week you have to read it again and again, how much you have done, what you have done. And then moment when you revise slowly, what happens is you know how fast your recall techniques. Now I would consider that अगर मुझे self study करना है और मुझे revise करना है, you have to join test series. I would say mentoring would be better about test series. And I would present and talk about the Elevate IS revision test series, how we plan to do. Definitely, it was the first phase was launched on 18th October. But ऐसा भी हुआ है कि you may not have completed any test series seriously because challenges थे, exam आया नहीं था. But now we stand around 150 days away. So I want to talk about how to handle the test series and what extra add-on I'm going to provide in this test series to help your revision, help you consolidate your preparation. See, it is you who has to give time. Providing content or thing is not a big task. You can buy it anytime. It is your time which you have to give, and in that same time, how you are using those content is important. वो आपका सबका individual. So if you go by your process, you should be able to. And people who are joining me on the live in the platform, there is something called live chat. You can see I've just sent hi. Uh, So if you have any questions which you want to talk about, particularly about this test is after the session or during the session, you can just use the chat function, and it is you. It will not come on screen, but I'll continue with the session. But your questions can be taken away. तो ये हमें टेस्ट से अब इतना सारा तो ज्ञान जो मैंने दिया, ये तो ऑब्वियसली ज्ञान है, एक्शनेबल तो कुछ भी नहीं था. एक्शनेबल इसलिए नहीं था क्योंकि हमने कहीं डेट और टाइमलाइन की बात करी ही नहीं. ना अभी आते हैं हम डेट और टाइमलाइन के बारे में. अब ऐसा था कि when I designed this test series, that time the I'll share the आपको please. So I hope you are able to see the of the thing. I actually started the uh, I started the test series design from 18th October, and the intention was to first give a good amount of
टाइम बेस्ड स्पीच में टाइम बहुत देने लगा था. तो इफ यू गो बाय माय प्लान, the calendar, and this is the OG calendar, or I'm going to, all the tests are going to get released on these dates only. So I'm going to relaunch this same test series where you choose your own date and you choose your own day to complete the test. But it is like the tests which have released, the release date are fixed. उसके बाद आप टेस्ट को, अगर आप सोचिए आप जनवरी एंड से ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको खाली अपने हिसाब से टेस्ट मिलेंगे, बट टेस्ट के ओरिजिनल डेट्स रिलीज यही रहेंगे जो मेरे अभी आपके सामने है. तो इसमें कैसा था, व्हाट वाज माय प्लान वाज, आई विल गिव यू द फर्स्ट प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर पेपर, सो दैट यू गेट टू नो कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम प्रिपेयर किस लिए कर रहे हैं, चाहे आपने पढ़ाई करी है कि नहीं करी. एंड जब मैंने उसको आपको दिया था, उसके साथ इफ यू रिकॉल, आई डोंट नो वेदर यू हैव ओपनड अप any of those sources or not, doesn't matter, don't feel any guilt thinking any time. I'm not questioning on this thing, I understand, I have been a student myself. बहुत time, it is so many things, you are occupied with multiple exams, multiple challenges. जरूरी नहीं कि we get all the गुड टाइम अपने हाथ में कि धड़ाधड़ धड़ाधड़ हम करते जाएं, जैसे जैसे सर ने बोला. बड़ा ही आइडियल सिचुएशन सिनेरियो होगा जबकि आपके पास भी टाइम है और सब कुछ है वगैरह टाइप. ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ. तो आप अगर देखोगे तो मैंने आपको वो टेस्ट का की के साथ साथ एक एनालिसिस ये भी भेजा था, एक्सेल शीट. अब वो उसका एनालिसिस एक्सेल शीट भेजने का रीजन ये था कि अभी जो हम टेक्निक्स बात करेंगे वो आपको तब समझ में आए कैसे होता है. आपको फर्स्ट फॉरमोस्ट स्किल इज, आप कोई भी टेस्ट करें, कोई भी टेस्ट पेपर लें, यू शुड बी एबल टू नो रीडिंग द क्वेश्चन कि कौन से सब्जेक्ट का है कौन से सब्जेक्ट, वो क्या, उसका क्या इकोनॉमी का है, पॉलिटी का है, क्योंकि हमें पता है कि सब्जेक्ट तो है उतने ही है, 7-8 सब्जेक्ट ये जो है. फिर उसके बाद कौन से टॉपिक से आया है ये. इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दिस, बस आपके प्रिपरेशन में वीकनेस है. इफ यू, चाहे कैंडिडेट, अगर आपको 15,000 कैंडिडेट के अंदर आना है, फर्स्ट स्किल है इसका, आपको इमीडिएटली जानना पड़ेगा, जानना, यू शुड बी एबल टू नो व्हाट इज द सब्जेक्ट इट इज एंड फ्रॉम विच टॉपिक इट इज. ओके. तो आप, मेरा ये था कि आप अगर ऐसा ये एक्सरसाइज करते तो आपको पता चलता है कि कितना टॉपिक इकोनॉमी से आया है, कितना एनवायरमेंट से आया है, कितना आर्ट एंड कल्चर से आया है, सो दैट यू विल बी वेरी क्लियर कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मेरे अंदर वो स्किल है कि नहीं. पर ये मैंने आपको करके दे दिया था, सो दैट यू आर एबल टू जस्ट गो टू द डैशबोर्ड. और ये जो एंटायर एलिमेंट था, ये जो वर्कड आउट है, इसमें फिर मैं पूछता हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, या अप्लाइड क्वेश्चन था. अगर फैक्चुअल है तो आपने फैक्चुअल चूज करना था. अगर कॉन्सेप्ट था, जैसे ये तो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको वो इजी लगा, मीडियम लगा कि हार्ड लगा, दुनिया को क्या लगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं. व्हाट वाज फॉर यू. अगर आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है, आपको यू आर डिफिकल्ट फॉर यू, इकोनॉमिक्स का सिंपल क्वेश्चन भी हमें हार्ड लगने वाला. अब मैं एक इंजीनियरिंग हूँ भाई, ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे लिए इकोनॉमी बहुत हार्ड था, मेरे लिए हमेशा हार्ड रहा हो, चाहे वो एक वर्ड का आंसर क्यों ना हो. चाहे लोग हंसते थे कि यार तुझे जीडीपी नहीं पता, एनएनपी नहीं पता, अरे नहीं पता है, खत्म, सिंपल सी बात. मेरे लिए हार्ड. डिड यू अटेम्प्ट और नॉट. ये भाई हार्ड था तो मैंने अटेम्प्ट नहीं करा. चलो ठीक है, अगर अटेम्प्ट नहीं करा तो ठीक है, तो फिर तो आपने कोई आंसर नहीं दिया. अगर आपने अटेम्प्ट किया होता, हैड यू अटेम्प्टेड, व्हाट वाज द आंसर यू मार्क, और उसके बाद आप उसको चेक करते इस आंसर को यहाँ के आंसर से, अगर सेम है कि गलत है. अगर जो भी उसका आंसर अगर मिलता तो आप उसको लिखते हैं आउटकम क्या है, करेक्ट है कि क्या है, करेक्ट है रॉन्ग. तो जब आप ये क्वेश्चन कर रहे थे तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा था, हाई था, मीडियम था, लो था, आपको कितना टाइम लगा ये क्वेश्चन करने में, और आपको नॉलेज सोर्स कैसे लगता है कि स्टैटिक से आया, कि करंट अफेयर था, कि इंटरडिसिप्लिनरी था. तो ये आप स्टिक कर सकते हैं, ये खुद का एनालिसिस है. अगर आपसे गलती हुई है, क्यों गलती हुई, मुझे पता नहीं था, मुझे पढ़ा नहीं था, मतलब नॉलेज से अगर आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे. द मोमेंट यू लर्न इट यू विल अंडरस्टैंड. यार ये पढ़ा तो था पर याद नहीं आया, रिवीजन नहीं हुआ. पढ़ा तो था, याद तो थोड़ा बहुत आ गया था, पर कॉन्फिडेंस डाउट हो गया एलिमिनेट करने में, प्रैक्टिस नहीं. चौथा,
मैं बहुत नर्वस हो गया था, मुझे कुछ, मेरा ब्लैंक हो गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था टेम्परेट। तो इससे हमको पता चलेगा कि ये आपका जो है क्या, किस तरफ जा रहा है गाड़ी, स्वॉट एनालिसिस में। मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा था। तो ये बहुत टाइम लेने वाला चीज है, ये एक प्रीलिम्स का अगर हम करने में आपको एटलीस्ट 4 से 5 घंटा लगेगा सिर्फ ये एनालिसिस करने में, पहला दिन। अगर आप ये करते ईमानदारी से या करोगे ईमानदारी से, आपको पूरा पेपर का स्ट्रैटेजी समझ में आएगा कि यूपीएससी कैसे पेपर ही डिजाइन करता है, कैसे टॉपिक मुझे पढ़ने चाहिए, ये आ पाएगा। और ये मेहनत बहुत बहुत हैवी मेहनत है। ये 4 घंटा बैठना, बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई कुछ किया नहीं बट इसके पीछे भागना बहुत स्ट्रेसफुल है, बिकॉज आपने कोई चीज पढ़ी नहीं है, सब कुछ गूगल से सर्च कर रहे हैं, सब कुछ ऐसे सर्च कर रहे हैं। ऑल तो मैंने सर्च करके दे दिया है, फिर भी आप क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन तो करोगे ही ना, समझोगे ना कहाँ से आया है। तो ये एनालिसिस का शीट मैंने दे रखा था। द मोमेंट यू फिल द डेटा, ये ऑटोमेटिकली आपको दिखाता कि आपके कितने क्वेश्चन एनालाइज किए, कितना सही है, कितना गलत है, जो भी चीजें हैं, कितना इजी मीडियम आपके हिसाब से ये दिखाता। तो कितना स्ट्रेंथ आपको, कितना वीक था, कितना एरर था, क्या एरर का रीजन था, ये सारा चीज आपका पर्सनल डैशबोर्ड आता। फिर आप मेंटर के साथ बात करते, तो मैं आपको बताता कि हाँ ये दिस इज द वे, दिस इज व्हाट इज योर एरिया एंड दिस इज द वे यू शुड बी एबल टू क्रैक। तो ये इंटेलिजेंटली क्रिएट, ये ऐसा दिखने में टफ है बट एक बार आप मेहनत करते तो यू विल गेट इट। आज भी टाइम है, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि दिया क्यों गया था। अगर आपको कुछ भी नहीं आया तो सिर्फ आना क्या चाहिए इसमें, क्वेश्चन पढ़ते ही कौन सा सब्जेक्ट का था और कौन सा टॉपिक उसमें था, ये स्किल तो आना ही चाहिए। So I hope you are clear on that, ki how you had to do this. Why I am talking about this is ki the next which piece of strategy that we are going to talk is how to attempt paper. इसमें it is going to be very important, ये skill. Now मैं 2006 से मैंने प्रिपेयर स्टार्ट किया था, मेरा प्रिपरेशन 2006 में, जब एंड मतलब ऑल्दो पेपर वन पेपर टू होता था बट ऑप्शनल पेपर, देयर यूज्ड टू बी ऑप्शनल पेपर इन this thing, and both were qualifying and both were important in the thing. uh, so so you have to give me this credit that I've given many papers, many times many papers, and while giving many papers I must have failed in multiple papers, but I have tried many things to understand what UPSC is. Many a times we try to learn UPSC papers from NDA level of paper or CDS question, because they are all from UPSC question bank, but honestly, or other exam, but they are not UPSC civil service level exams. Civil services questions are absolutely different. Even if the same information, even if it might have the same answer, it might have been talking about the same geography, answer might be India, but the question, the way it is framed is different. Hence, the level of this paper is a very different way to look at it. So there are couple of methods which we can prepare or we can think of when we attempt the paper. One of the first method is called 3R technique. That is called read, read, read. ना इस टेक्निक में करना क्या होता है कि सबसे पहला, आप जैसे आपको पेपर मिलता है, पहले 10-15 मिनट में आप क्विकली पेपर को स्कैन करोगे। और उस स्कैनिंग में आप क्या करोगे, उस स्कैनिंग में जैसे आपको, जैसे ये for the moment I have to share the paper and share you. Imagine that you are in the exam hall और आपको उसने पेपर पकड़ा दिया है, क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया। आई होप यू आर एबल टू सी द क्वेश्चन पेपर। अभी फर्स्ट 10 मिनट्स आपको करना क्या है, आपको स्कैन करना है पेपर, पेज पलटना है। ये तो पीडीएफ में, बट इन पेज यू कैन टर्न, हिंदी, हिंदी इज वन साइड और इवन नंबर एंड इंग्लिश इज एन ऑड नंबर्स। तो आपके राइट साइड के सारे इंग्लिश ही आते रहेंगे और आपके लेफ्ट साइड के सारे हिंदी आते रहेंगे।
तो या अदर वे, जो भी, हाउ एवर इट कम्स आउट। तो ये आपको पढ़ना है क्वेश्चन। तो आपको जैसे क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे पहले रफ पेज की तरफ जाके, रफ पेज में जाके, आपका रफ पेज होगा सेकंड 4 पेज जो है लास्ट के, वो रफ पेज होगा। उसमें आपको करना क्या है, आपको आपको एक टेबल आपको लिखना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एसएनटी, आर्ट एंड कल्चर, एक तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट कल्चर एंड करंट अफेयर। ये आपने ऐसे लिख दिया। द मोमेंट यू राइट दिस, आफ्टर दैट आपने पीछे वाले को रखना है हाथ में पकड़ के, पहला क्वेश्चन। अच्छा, कुछ बॉन्ड्स और ये, ओके, ये इकोनॉमी से आया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इकोनॉमी, क्वेश्चन नंबर 2 इकोनॉमी, क्वेश्चन नंबर 3 इकोनॉमी, क्वेश्चन नंबर 4 हिस्ट्री। मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, लेकिन आप कैसे करोगे, जैसे जैसे पढ़ते रहोगे आप ऐसे ऐसे करते जाओगे। आपने क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा, सेकंड भी इकोनॉमी का है। थर्ड जो है, ये आया कुछ होम डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, ये वो, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी का पकड़ ले। फोर्थ है आरबीआई का कुछ है, तो ये अब आता है इकोनॉमी। फिफ्थ इंडिया इनकम। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे साथ साथ। तो जैसे पढ़ोगे, जिस कौन से सब्जेक्ट का आप देखोगे, तो आप उसको लिखते जाओगे, ऐसे लिखते जाओगे सारा क्वेश्चन का सीक्वेंस, नंबर धीरे 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 धीरे। तो एक आध क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जैसे कि 14th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड assumed the titles of मत्त विलासा, विचित्र चित्ता एंड गुणभारा। अगर ये 14 नहीं है, हिस्ट्री में लिखा आपने, अगर आपको इसका आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ो। अगर आप फिर ऐसे, अगर आपको, आपने फाई एंड द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द reign ऑफ, अगेन आपने 15 हिस्ट्री में लिखा, अब वो कब आए थे, समुद्रगुप्ता में आए थे कि चंद्रगुप्ता में आए थे कि कुमार गुप्ता में आए थे कि स्कंदगुप्ता। अगर आपको आता है तो इमीडिएटली आप उसको राउंड कर दोगे, नहीं आता तो छोड़ दोगे। तो ऐसे कहीं पे भी आपको इजी क्वेश्चन अगर ऐसे, अभी तक तो हमें दिखा नहीं इजी क्वेश्चन, बट आप जब करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, फर्स्ट आवर में, फर्स्ट रीडिंग टेक्निक में, after 10 to 15 minutes, what you would have been achieving is ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ऐसे करके आपने अभी क्या कर दिया, आपने फर्स्ट 10-15 मिनट्स के रीडिंग में कैटेगराइज कर दिया कि हिस्ट्री के टोटल कितने क्वेश्चन है, पॉलिटी के टोटल कितने क्वेश्चन है, इकोनॉमी के कितने क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बताए। ये हो गया आपके पास तैयार। एग्जैक्टली एक्सेल शीट में भी हम ऐसे कर सकते हैं, फिल्टर फिल्टर करके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ तक समझ में आपको? 3 आर टेक्निक का पहला आर टेक्निक। सेकेंड आर जब हम आते हैं, अब हमको करना है जैसे हमने पढ़ाई की है वैसे। अब हम जब पढ़ाई करते हैं ना, हम ऐसे मिक्स वेज की तरह पढ़ाई नहीं करते। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पूरा दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पॉलिटी पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि आधा घंटा हिस्ट्री पढ़ेगा, सडनली 2 मिनट के लिए साइंस अटैक पढ़ लिया, 2 मिनट के लिए, ऐसे नहीं पढ़ते। जब हम पढ़ते हैं तो एक पूरा फ्लो में पढ़ते हैं। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग पूरी मेडिवल वर्ल्ड में ही चला गया, कि आपको अकबर भी दिख रहा है, हुमायूं भी दिख रहा है, आपको सब दिख रहा है। अगर आपने कोई पिक्चर विक्चर देखी तो वो भी वैसे दिख रहा है आपको वहाँ पे उस टाइम का। अगर आप एंशिएंट इंडिया देखना शुरू करो तो आपको गौतम बुद्धा भी दिख रहे हैं, आपको जैनिज्म भी दिख रहा है, सब दिख रहा है, हड़प्पन संस्कृति दिख रही है। आप उसी दुनिया में आपका दिमाग चल रहा है। इमीडिएटली यू कैन नॉट कम बैक टू साइंस एंड टेक की इतने सारे बॉम्ब बनाए ब्रह्मोस ने, रशिया और इंडिया ने। आपका ब्रेन पागल हो जाएगा रे, क्या अचानक से कहाँ आ गया। सो वी स्टडी बाय दिस टेक्निक।
तो नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जाम, जब आपने पहला आवर कर दिया, सेकंड आवर में अराउंड 80 मिनट्स यू विल गो टॉपिक वाइज. History, so first you'll only read fourth question, then fifth question, then sixth question. Jump to 22nd, 23. You go topic wise and complete that. And which topic to choose first is your strength areas. जैसे अभी किसी ने मुझे चैट पे लिखा कि मेरा ज्योग्राफी वीक एरिया है, तो उसको पहले नहीं पकड़ने का, पहले अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करने का, पहले अपने आप को मोटिवेट करने का. अगर आपका स्ट्रेंथ एरिया सोचो पॉलिटी है, तो पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस पहले करो, ढूंढ ढूंढ के निकाल के तुमने रखे हैं 7th 8th 9th, तो आपको पता चल जाएगा कि अराउंड 20 क्वेश्चन थे पॉलिटी में. 20 क्वेश्चन में से आपने 15 अटेम्प्ट किए. ये एनालिसिस बाद में करना है, बट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक दैट, यू गो टॉपिक वाइज. सो क्या होगा, 80 मिनट के अंदर, इन द नेक्स्ट 80 मिनट्स यू वुड हैव कंप्लीटेड द पेपर टॉपिक मिनट्स. और आपकी एफिशिएंसी और आपके जो ब्रेन का जो डाइवर्शन है वो बहुत क्लियर हो गया होगा. अभी पूरा पॉलिटी कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने अभी सीधा साइंस एंड टेक में फोकस किया. तो जैसी ऐसी आपकी पढ़ाई हुई होती है, वैसे आपकी स्ट्रेंथ एरिया बना होता है. तो लाइक दैट यू इन द सेकेंड आवर यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर 80 मिनट्स ऑफ डूइंग दिस. अब इसी बीच में जो क्वेश्चन आप कर दे रहे हो, उसको आपको करना क्या है, सर्कल. ये सर्कल, हाँ ये मैंने कर दिया है, जो नहीं किया छोड़ दिया. जो आपने पढ़ा और आपको लगता है कि इसमें मुझे डाउट है, उसको छोड़ देना, एक टिक मार देना. फिर लास्ट के 10 मिनट्स में जब आप रिवाइज कर रहे हो, आप देखोगे सबसे पहले आवर में अराउंड 10 से 15 सिंपल क्वेश्चन, आप 100% जिसको श्योर हो गए आप वो क्रैक कर लो. सेकेंड आवर में आता है अराउंड 60 क्वेश्चंस. इस 60 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही जाएगा, बाकी 20 क्वेश्चन बीच बीच में होगा. तो कितने हो गए, 60 70 85 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन के आसपास आपने कर लिए. अब रह गया अराउंड 25 क्वेश्चन. ये 25 क्वेश्चन हार्ड. अब इस हार्ड क्वेश्चन, हार्ड इसलिए भी हो सकता है कि आपको पता नहीं है, हार्ड इसलिए भी हो कि पता होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे. तो जो आपको पता नहीं है उसको तो भूल जाओ, छोड़ दो, उसको तो अटेम्प्ट ही नहीं करना. जो आपको थोड़ी बहुत डाउट लग रहा है कि शायद से मुझे पता है, ये गेस नहीं कर पा रहा है ना, तो वो 20 क्वेश्चन और इसमें से और 5-10 क्वेश्चन, वो थोड़ी सी डाउट, वो लास्ट आवर के टेक्निक में देखना है, उसमें से कुछ करना भी है कि नहीं करना. नहीं तो 40 क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे किए हैं और 15 क्वेश्चन जो आपके 100% एक्यूरेसी है, वही आपका अटेम्प्ट का मैक्सिमम रहेगा. तो हमारा जो प्रिपरेशन होता है ये 40 को बढ़ा के 55 तक लेके जाने की. तो हम मोटा मोटी दैट इज हाउ द एक्यूरेसी, हमने हाई एक्यूरेसी वाली क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, जिसमें हमारा एक्यूरेसी रेट बहुत हाई. तो एरर रेट कम होगा और नेगेटिव मार्क कम मिलेगा, और आपको क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग का जो है वो बहुत तगड़ा हो जाएगा. इनफैक्ट आप देखो, अगर आप कट ऑफ के पीछे माइंडसेट से अगर जाओगे तो बहुत मुश्किल है. बिकॉज ये मेरा क्या मानना है कि जैसे अगर पेपर आपके लिए टफ है तो पूरे कंट्री के लिए टफ है. पेपर आपके लिए इजी है तो पूरे कंट्री के लिए इजी है. अगर इजी पेपर है तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, और अगर टफ पेपर है तो कट ऑफ लो आएगा, तो बहुत कम ही लोग क्लियर कर पाएंगे. तो इसलिए कट ऑफ आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में एक्यूरेसी आपके हाथ में. द मोमेंट यू डू बाय दिस, एवरी मॉक, एवरी पेपर यू हैंडल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, मैं नहीं कहा था टुडे ऑनवर्ड्स, फुल पेपर को आप करो, जो फुल पेपर है जिसमें सारे सब्जेक्ट बटे हैं. ऐसे सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर में ये टेक्निक नहीं काम करेगा. व्हेन ऑल द सब्जेक्ट्स आर देयर, देन ओनली यू विल बी एबल टू नो कि हाँ कभी कभी 12 क्वेश्चन पूछते हैं, कभी 10 क्वेश्चन पूछते हैं, कभी 19 क्वेश्चन पूछ लेते हैं. यू विल एबल टू अंडरस्टैंड क्या ट्रेंड चलता है और कैसे आप क्रैक कर सकते हो प्रिपरेशन को. सो यू आर एबल टू, ये है 3R टेक्निक ऑफ दिस थिंग. तो इसको आपको प्रैक्टिस करने से ही मतलब होता है, ये तो ऐसे बोल के तो नहीं होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है. दूसरा टेक्निक जो है, बहुत बच्चे साइकोलॉजिकली क्या करते हैं, पेपर को जो है पीछे से पढ़ते हैं. जैसे ही पेपर हाथ में आया उसको वो उल्टा खोलते हैं, उस फोल्ड को उल्टा खोलते हैं और पेपर को उल्टा करना शुरू करते हैं. तो कभी कभी क्या होता है, जो पेपर सेटर का जो माइंड सेट है वहां पे कैप्चर हो जाता है. पेपर सेटर पहले 20-25 क्वेश्चन स्टार्टिंग में बहुत टफ ही रखता है, चला चाहे आपका कोई भी सेट हो, ऐसे ही होता है. 10-15-20 क्वेश्चन तक तो आपको कुछ आ ही नहीं जाता, वहीं आधे लोगों का कॉन्फिडेंस चला गया था.
तो अगर आप पीछे से स्टार्ट करोगे या बीच से स्टार्ट करोगे तो इजी क्वेश्चन दिखने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, हाँ 4 क्वेश्चन तो मैंने कर लिए, 2 तो बन गए मेरे, लाइक दैट। तो ये रिवर्स टेक्निक दूसरा। बाकी मैंने आपको सब्जेक्ट क्लस्टरिंग बता दिया कैसे कैसे आप सब्जेक्ट वाइज चलोगे। नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक में क्या है कि नाउ यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी प्रॉपरली। क्वेश्चन के फ्रेमिंग में ही सिली मिस्टेक्स होते हैं, विच हेल्प्स लाइक लॉजिकल एलिमिनेशन। यार ये क्या ही पूछ रहा है, यहाँ पे प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्यों लिखा रखा है ऑप्शन, गलत है ये, हटा। सेकेंड है कि कोई किसी कॉन्टेक्स्ट अगर कुछ गलती क्लू है वहां पे, तो मतलब जानबूझ के एरर रेट कर रखा है, तो वो आप पकड़ सकते। फिर कभी कभी क्या होता है कि पेयरिंग के वजह से, कॉन्सेप्ट के पेयरिंग की वजह से, कि नहीं यार ये तो कुछ और ही कॉन्सेप्ट है, ये इकोनॉमी में हिस्ट्री क्यों घुसा रखा है, तो यू कैन टेक इट आउट। बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। आई थिंक 2023 में उन्होंने एलिमिनेशन टेक्निक वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को हटा ही दिए थे, बिकॉज मेनी पीपल स्टार्टेड मास्टरिंग इट। कि जैसे आपको पता चले, अगर आप 4 में से 2 ऑप्शन 50-50 कर लेते और 2 रह जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग हाई हो जाता है ना 50%। तो लाइक दैट बहुत बच्चे एलिमिनेट कर देते थे ऑप्शंस, और इजीली दे यूज्ड टू, चाहे पढ़े हो ना पढ़े हो, वो सही उनके लिए सही पड़ जाता। फिर आगे मेंस में रुक जाते थे, तो बिकॉज वो हैंड पेपर राइटिंग पेपर होता। बट दिस वे सर यूपीएससी ने अनप्रडिक्टेबिलिटी या प्रेडिक्टेबिलिटी के हिसाब से कभी कभी एलिमिनेशन टेक्निक में भी गेम खेल दिया। बट स्टिल दैट इज अ टेक्निक जो हमको, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे एलिमिनेशन टेक्निक से बहुत सारे पेपर, बहुत सारे जो आपको सब्जेक्ट आता भी नहीं है, जस्ट बाई एलिमिनेशन टेक्निक आप स्टिल यू आर एबल टू क्रैक इट। सिमिलर अप्रोच सी सेट पेपर के लिए भी रहता है। यू हैव टू सी दैट सेक्शन वाइज आप प्रिपेयर करो। जब आप क्वेश्चंस पढ़ो, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक गो में करो, आप फिर लॉजिकल रीजनिंग एक गो में करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में नहीं रखने, लास्ट में एग्जाम का टाइम खत्म हो रहा होता है, आप क्या पढ़ोगे, इंग्लिश आपका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सो यू विल गेट वेरी मच, इट विल वेरी वेरी चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लास्ट लास्ट में। योर आईज विल ओनली रन बट यू नॉट अंडरस्टैंड इट। इट हैज टू बी डन इन द फर्स्ट 45 minutes, and then mathematics in between. Now mathematics, the problem is that many of us feel that mathematics is the, it's a very challenging thing. The moment you clear mathematics, then everything is clear. ऐसा नहीं। UPSC plays on this. Your ego is hurt because you are not able to solve it, and when your ego is hurt, you are not able to continue the paper. So that's why don't अगर आपको कुछ आता नहीं है, if you are not able to clear, just move on for the next question. हमको सिर्फ 30 easy questions ढूंढ के क्रैक करना है। वी हैव टू ओनली, इट इज जस्ट लाइक ए गेम ऑफ कैट एंड माउस चेज। वी हैव टू जस्ट फाइंड द 30 सिंपली क्वेश्चन एंड दैट्स इट। हम लोग क्वालिफाई कर देंगे 100% एक्यूरेसी। So that should be the way in which CSAT practice should happen. And I think that it is also while up when you do the 10 years paper for practice, you will be able to do it. Now let's take a break for a second. I have got one question in front of me. It says, "Sir, I find it quite difficult to solve geography-related questions. Can you suggest me some good source for revising it?" So geography, I would suggest firstly, if you have done the NCRT books, if you have done the Goch and Leon books, first do the previous year question and understand what are they framing in geography question. Because geography has three aspects to it. One is geography, physical geography, where they talk about this, all the planet, all the aspect of planet and things like that, or mountain, land, air, wind, like that, climate, weather, like that. Second comes the economic geography or human geography, where we are talking about uh, uh, industry, we are talking about people in it, human as a resource, culture, settlements, and all this aspect of it. So, which kind of questions are challenging to you? We need to figure it out. And then comes this GK type questions, like which we call geography. If you're traveling from Bali to, say, or from Indonesia to UAE, what are the rivers which you will see from
east to west, like that, where you have to see map, where you have to see atlas, you have to see the atlas, you have to understand what how many states around uh, Telangana. Telangana boundary touches how many states, like that. So you have to see the map. You have to remember from that, or the geography questions like equator passes through how many states in in India, like those kind of questions. So if those are the questions, those needs observation questions, and you need to prepare yourself from that observation question. And I feel these questions can be done very well through revision of practice MCQs. Uh, so, the source wise, I told you the NCRTs and Gochan Leon is a good source to learn it. But practice wise, I think my own program, my own books gives a lot of insight on that. But otherwise, we have a good author. Majid sir used to be a very good author, and practice workbook was there for geography. And like a similar concept, I am going to also talk about today how to revise with these questions and all. But otherwise, in the market, I think there are some good books on uh, all the subject wise. But I would say like they are like what happens with them is uh, mm, uh, if you have read the source properly from that single source, you will be able to understand it. Otherwise, it becomes a collection type. You bought the book, but you're not able to complete it. That is what the challenging thing is. It is, but otherwise, Majid Hussain book is very good. Now, let's continue with the session. Now, I want to talk about one thing that let us understand what was the UPSC's mindset. This exam is not an academic exam. This exam is an exam for a job. This exam allows people for multiple qualification. You have to just be a degree, and your degree can be from India or from outside. Doesn't matter. That is the only recognized institute should provide you degree. कौन सा स्ट्रीम है क्या है वो कुछ मैटर नहीं करता. यूपीएससी हैज इट्स ओन सेट्स ऑफ सब्जेक्ट. यहाँ इंजीनियर भी ज्योग्राफी लेके पास कर सकते हैं. यहाँ मेडिकल वाले भी सोशियोलॉजी लेते हैं. तो इट इज नॉट बाउंडिंग यू टू गो बाय योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट. इट इज टेलिंग यू कि ये है एग्जाम सेट एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस. So what is basically, and we are preparing for what? Becoming a civil servant. तो सिविल सर्वेंट बनने के लिए प्रिपेयर करो तो दे आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर दिस एग्जाम हैज 19 सर्विसेज टू चूज फ्रॉम. एंड 19 सर्विसेज का एप्टीट्यूड अलग अलग ही है. देयर आर सम यूनिफॉर्म सर्विस, देयर इज ए ऑल इंडिया सर्विस, and there is services which are central government service, which is some services are related to taxations, and some services are related to other functionalities of India as a country, like telecom, like postal, and things like that. So, so you have to understand on what basis they are creating this exam. So, by the top. So what happens so if you go by that analysis, and when you do your previous year question papers analysis, you will realize that UPSC focuses on foundation, conceptual clarity. It is what it is trying to see कि आपका फंडामेंटल कितना क्लियर है. क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा, इंग्लिश बदल जाएगा, एग्जाम्पल्स बदल जाएंगे, बट आर यू अवेयर अबाउट द फाउंडेशन प्रॉपरली. और वो बेसिक प्रिंसिपल एनसीईआरटी लेवल का ही है. इट इज नॉट ऑफ एनी बिग बुक्स. एनसीईआरटी में जिस तरीके से उन्होंने डिकोड किया है, आर यू क्लियर इन दैट? दैट इज व्हाई एनसीईआरटी इज मस्ट. सेकंड इज every time you'll see that current affair अपने आप में तो कुछ है नहीं. It is has to be something related. For example, before 2019, Article 370 was not a current affair. It was a part of Constitution. On August 5th, 2019, Government of India abolished Article 370. Same year onwards, it has become current affair. Now, Article 370 is in news for multiple reasons. Whether how did the Constitution act on it, how the Constitution was, is our Constitution flexible, or is our Constitution, and all this kind of thing. Article 370's abrogation has created.
and now it has become current affair. So with the example of Article 370, they will put something, a static subject of uh, remedial or constitutional remedy or something like that. That is where the UPSC starts playing. कि आप कितना ज्यादा सोच पा रहे हो analytically. Are you able to interrelate? ज्योग्राफी और इकोनॉमी में बहुत कम लाइन है. Many times industry subjects that we learn in economy are also part of geography. They say that multiple mining industries are there in Chhattisgarh, in Jharkhand. Now, why the industry of mining is in Chhattisgarh and Jharkhand, not the software companies or not any other companies, car manufacturing companies or things like that? Because the geography of Jharkhand and Chota Nagpur plateau of Chhattisgarh has mines below it, coal mines below it, or multiple other mineral mines below it. So government decided to use, how do you have to you create a machinery to mine it over there itself. It cannot move here and there like a software company. उसके लिए आपको एक ऑफिस बिल्डिंग चाहिए बस. Wherein for mining kind of industry you got to go there. If you have to open a car industry, तो आपको कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, हाउ फार हाउ नियर इट इज. हेंस जमशेदपुर बिकम ए कार इंडस्ट्री बिकॉज वहां पे स्टील बन पाया. माइनिंग होता था आयरन ओर का, कोयला मिल गया वहां से रानीगंज से, एंड पानी मिल गया झारखंड वो रिवर से, सुवर्ण रेखा रिवर से, और उस वहां पे फिर जमशेदपुर टाटा का टेल्को प्लांट फॉर ट्रक्स एंड व्हीकल स्टार्टेड. So why these things are located over there? Why the industry of automobile is located in Pune, Chennai, Bangalore? Because today the maximum automobile which is created is made in India for actually delivered for world. We are not only the consumer of Hyundai vehicles. Hyundai global plant is in Chennai. It is producing global vehicle for India. So it is in Chennai because it is near port. Or similarly in Andhra Pradesh because near Visakhapatnam port, or similarly in Pune because near Mumbai port, or similarly in Bangalore because again near Karwar port. So you will realize how important is the location of industry. The ऐसा type का thinking जो है, multi-type thinking is what UPSC is checking. सो दे यूजुअली वहाँ जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैं कोचिंग में ये पढ़ा रहे हैं, ये ट्रेंड है, ये है, अगेन वो वहाँ पे पकड़ लेंगे. Another mindset which I want to I find a flaw in all the people is all the aspirants is they go with the mindset of 100/100 लेके आऊंगा मैं, 100 out of 100 लाऊंगा. They prepare from that mindset. See, when you prepare from 100 out of 100 mindset, the problem is you are not going to achieve it. That 100 out of 100 mindset starts the feeling of guilt. तो मैंने तो टॉपिक किया ही नहीं, मैंने तो इतना पढ़ा ही नहीं, मेरे से तो हुआ ही नहीं, पोर्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ. अरे जितना पढ़ा उतना भी याद नहीं रहता. So let me clear today one thing you learn कि 100 out of 100 is not the mindset you have to go. किसी को नहीं मिलता है 100/100. मैक्सिमम 110 130 ही मिलता है 200 में से. अराउंड 50-60% ही है. So hence do not create such ambition that कि वो गलत ambition है और you are able to उसी वही आपका गिल्ट बन जाता है. So be realistic. And because if the exam has to be dynamic, you will see the current affair weightage keeps on changing from 30 to 40%. So overall देखा जाए it is just like a puzzle to solve. It is not the exam paper or reading. It is searching for easy questions, then searching for questions which are non-confusion, searching for questions which are ऐसे में ही आपका 40-50 क्वेश्चन हो जाता है अगर एक्यूरेसी 100% के साथ. बट इफ यू गो लाइक नहीं मैं तो पेपर पढ़ के आया हूँ पर स्ट्रीट स्मार्ट नहीं मैं सब पढ़ूंगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतना एंशिएंट हिस्ट्री किसको पता है, ये तो न्यूज में भी नहीं था. तो these things happen. So this is why your mental mindset should be what 100/100 का माइंडसेट नहीं होना, ये पहला चीज. Now let's go. I want to take some moment on how do you use this
subject wise, but I have a detailed plan for it, which I'll talk just after this. In polity, you see, it is all about constitution. You open up the constitution index. In constitution index, you read the index properly, और उसमें आपको क्या क्या याद आता है आप देखो कौन से पार्ट है. From index itself, you will be able to create a what you call a flow chart, or what you call as a um, memory diagram. कि then it the first format is that. सेकेंड आता है इकोनॉमिक्स में. इकोनॉमिक्स में भी आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमिक सर्वे और बजट के अराउंड ही चीजें होती है. बट टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स. So that fundamentals is there is class 11, and you have to go through that. Once you go through that, see that कि current affair में जो भी टॉपिक्स आए हैं which are aligned to which topics. Economic survey itself, अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ लो, it itself tells you how to see economics. Then comes geography. I told you geography के there are multiple things to it. You have to see map, you have to see atlas. Without that, बिना हैंड से क्रिएट किए आप नहीं कर पाओगे. You have to do that. फिजिकल ज्योग्राफी आपके all these मैपिंग एक्टिविटीज जो एटलस से दिखता है वो आपको करना पड़ेगा. देन इट्स अ वेरी विजुअल लर्निंग. द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग विजुअल लर्निंग, you when the moment they say आगरा, तब को या फटाक से दिखाई देगा दिल्ली से 4 घंटा नीचे आगरा है. जैसे जयपुर, अगर आगरा के उस तरफ जयपुर है लेफ्ट में, और ये ट्रायंगल बनता है. एंड लाइक दैट, वेयर इज थार डेजर्ट, थार डेजर्ट इस तरफ है. वेयर इज अटलांटिक ओशन, वो अटलांटिक ओशन बिटवीन इंग्लैंड एंड अमेरिका है. टाइटैनिक. वेयर इज पैसिफिक ओशन. लाइक दैट. आपको धीरे धीरे once you go through it slowly देख देख के you'll start enjoying it. History has a huge portion, but let me tell you, history is the most easiest, or I would say बड़ा ही सिंपल तरीका है. टाइमलाइन की तरह चलता है फ्रॉम जीरो टू आज तक का. तो तब क्या हुआ आप इमेजिन कर सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो. I always consider Manorama yearbook timeline as the fundamental timeline. It has a very standard timeline. बहुत ज्यादा ओवरफ्लोड ऑफ इंफॉर्मेशन ही नहीं है. आपको ब्रेन में तो वो आ जाता है. एंड वंस दैट टाइमलाइन इज देयर इन योर ब्रेन, देन यू एनरिच विद इंफॉर्मेशन. कौन से टाइम पे क्या हुआ था, कौन क्या था. स्पेशली मॉडर्न इंडिया इज समथिंग फ्रॉम 1765 टिल 1947. आपको हर साल महीने के हिसाब से याद रखना पड़ेगा. अगर वो आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो गया, यू सी वी आर टुडे व्हाट इज बिकॉज ऑफ आवर द कंट्री इज लिविंग बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइसेस ऑफ पीपल हु फॉट मेकिंग दिस कंट्री इंडिपेंडेंट. तो आप उसको उस तरीके से पढ़िए टू लर्न अबाउट. आपको और मौका कभी नहीं मिलेगा टू नो अबाउट द रियल हीरोज, व्हाई यू आर फ्री इनफ इन दिस कंट्री. गिव दैट टाइम, गिव दैट रेस्पेक्ट टू देम, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग. फिर एनवायरनमेंट के टॉपिक वाइज टॉपिक्स हैं. इससे आप टॉपिक शीट से देख सकते हैं कितना इन्फॉर्मेशन है, कितना याद रहता है. स्टिल आई से इट्स अ होल लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. थोड़ी सी न्यूज बेसिस पे चलेंगे तो ठीक है. अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस पे थोड़ी सी ज्यादा डिटेल याद करना पड़ेगा. Then science and technology is definitely these days almost every news is science and technology based, and you have to see that current affairs mostly comes from this area. So this is a standard pattern. So previous year question will give you analysis and what kind of questions have been coming in science and tech, and you can prepare from that particular area. Now, before I go move forward, I also want to bring to your highlight that कि हम कैसे करेंगे इसको आगे. अभी हमने एलिवेट आईएएस का टेस्ट सीरीज किया. मैंने आपको ये दिखाया कि आई शोड यू द एग्जाम टाइमलाइन, एंड आई एक्सपेक्टेड दैट or I expect that if you go by the timeline, I want to show you this. The way I designed was, आप प्रीलिम्स का टेस्ट करोगे, फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी का रिवीजन कराया जाएगा हर 15-15 दिन के हिसाब से.
तो योर एनसीईआरटी विल बी ओवर इन 40 days, विच जो मैंने स्ट्रैटेजी में भी बोला। एंड देन 11 दिसंबर को ऐसा सेशन एक जो अभी हम ले रहे हैं, एक सेशन एक लेके फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और 15 डेज में आपका जो है टिल 7th March वी विल बी एबल टू कवर द एंटायर syllabus for the prelims paper, where you have the reading time and where you have the test doing time. And we will take sessions of revision of whatever you have done in between. This is all part of the program only. And then from 11th April, every week you will have a full test. This is a full test as per the UPSC standard. Full paper. यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज चल रहे थे, then now becomes full paper. And when it becomes full paper and with full CSAT, you will it's like a full test. और उसके बाद ये पेपर के बाद इसका सोल्यूशन आपको मंडे के मतलब संडे एक दिन ब्रेक होगा, टेस्ट का डिस्कशन होगा, विद वीडियो आपको भी दिया जाएगा, लाइक दैट. But I would specifically come because now we only have serious candidates who are giving this paper. I have chosen Saturday as the test day release, not Sunday, because many people go to offline center to give Sunday test. So if you choose to do that, you can do. So I've also now what happened is after this, many I do interact with a lot of students. तो मुझे ऐसे बच्चे भी पता चले कि सर हम they are preparing now only and they want to give the first attempt. तो इन दैट रीजन इज कि मैंने कहा आप बिना पढ़े कैसे दे पाओ. तो उन्होंने बोला कि सर आप बताओ क्या क्या पढ़ना है. अब देखो, अगर मैं सिलेबस लिख के मैं दूंगा, सब कुछ सिलेबस लिख के दूंगा, तो ये मैं सिलेबस कहाँ से लाऊंगा. सिलेबस तो वहीं से लाऊंगा जहाँ से यूपीएससी के नोटिफिकेशन में. बट इफ यू रियलाइज दैट सिलेबस इज नॉट जस्ट यूपीएससी के नोटिफिकेशन, द सिलेबस कम्स फ्रॉम और इट्स अ माइक्रो सिलेबस एक्चुअली. So I want to share this, that if you guys have not received, you let me WhatsApp me. But I want to share all my students, paid students, this book which I have written on prelims revision. Uh, just a second. तो ये बुक मैंने एक आई रिटन अ बुक ऑन प्रीलिम्स रिवीजन बेसिकली. एंड आप अगर अभी आपके पास ये नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको इमीडिएटली भेजूंगा. नहीं ऐसे भी भेज दूंगा सेशन के बाद. बट इस बुक का जो इम्पोर्टेंट तरीका ये है, आप इसको पढ़ोगे एक बारी ना, दिन में एक बारी जब भी आप पढ़ते हो, आपका माइंड सेट पहले क्लियर हो जाएगा. इसमें व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज हमको रिवीजन करना है, हमको पेपर क्लियर करना है बेसिकली. तो हाउ व्हाट ऑल इज नीडेड ऑन दैट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज सिलेबस वाइज टॉपिक टेस्ट. अब इसमें मैंने क्या करा है, हाउ द क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू मेक और वेयर द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम, क्या सिलेबस है, यही सिलेबस. ये मेहनत है पिछले 25-26 साल के पेपर्स को एनालाइज करके. और ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ मैंने किया है, ये बहुत अवेलेबल है मार्केट में भी, बट ये मैंने भी किया है. तो दिस आई पुट इन द बुक दैट एवरी टॉपिक, हिस्ट्री से लेके ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक हैज बीन ब्रोकन डाउन. जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. व्हाट हैपेंस इज जैसे ही आप फॉर एग्जाम्पल आप खुद प्रिपेयर करोगे, आज हम प्रिपेयर करेंगे, तो हम प्रिपेयर करेंगे तो अच्छा आज मैं प्री हिस्टोरिक कल्चर पढ़ने वाला. मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, ये 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 पढ़ लिया, पढ़ लिया. फिर इसके बाद इस पीडीएफ को सेव एज करके रख दोगे कितना मैंने पढ़ लिया. फिर इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या करना है. प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आप मेरे या तो आपको जीएस फाउंडेशन में आया होगा, या नहीं तो मैंने क्या किया, आई हैव स्टार्टेड
प्रैक्टिस क्वेश्चन के कुछ ई बुक्स मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के ई बुक्स हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन, जिनका जो गवर्नमेंट स्कीम्स पे, इकोनॉमिक्स पे, जो जो टॉपिक पे है, इस सब पे। तो आप देखो अभी धीरे धीरे रिलीज होते जाएंगे टॉपिक वाइज। तो फॉर एग्जांपल अगर हम अ, तो ये इसका ये प्राइस है, इसका 10-20 रुपए का कुछ है ये किताब, और कुछ फ्री है। जैसे ये है करंट अफेयर। The moment you download the current affair, open the current affair book. करंट अफेयर ये हम कर रहे हैं February 2025 का। तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं विद आंसर। तो आप करते जाओगे करंट अफेयर, तो इसमें कुछ 200 क्वेश्चन होंगे, तो आपका वो मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट होगा। तो जिसको करंट अफेयर बल्क लग रहा है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, वो करंट अफेयर आ जाएगा, उसको क्वेश्चन देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा ये इसी से एरिया से आया था, जो भी आया। दीज आर द प्रैक्टिस बुक्स। तो अभी करना क्या है, करना हमको ये है। तो आई टोल्ड यू अल्टीमेट, ये बुक ये तो मैं आपको दूंगा ही, ये आप एज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है। बट प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप वही करिएगा जो आपको जैसे जैसे आप सब्जेक्ट करते जाए उस हिसाब से। उसमें ई बुक्स मेरे जितने हैं, और ऐसा बिकॉज उसमें देखो मेहनत तो लगी है मुझे, मैं जितना लो कॉस्ट करने की कोशिश करता हूँ, बट जहाँ मेहनत लगी है वहां मैं छोड़ना भी नहीं चाहता। तो जैसे कि ये सारी बुक्स है, ई बुक पेड प्रैक्टिस होगा 20+ GST। तो यू हैव टू पे द बुक, पे फॉर द बुक। जब तक वो डाउनलोड ना हो आप वेट करो, अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे वो डाउनलोड होगा, और फिर आप जा सकते हैं। अगर डाउनलोड नहीं होता है या कुछ आपने पेमेंट कर दिया और डाउनलोड, बिकॉज इट टेक्स टाइम, पेमेंट के बाद कंप्लीट होकर डाउनलोड होने। तो आई हैव ऑल्सो, सो आई वुड से दैट वे यू कैन डोंट बाय बुक्स इमीडिएटली, सारा रख दो मैं बाद में पढ़ूंगा, नहीं नहीं, बाद में कुछ नहीं होता। जो करना है आपको अभी करना है। तो व्हेन यू प्लान तो मुझे आज ये पढ़ाई करनी है, तो आज मैं इसको करूंगा, तो उसी वक्त ही आप इमीडिएटली सब परचेज करके क्लोज कर सकते हो। पढ़ाई किया आज ही खत्म किया, उसको बाद के लिए रखना ही नहीं है। जब आपने बाद में रख लिया तो आप सोचा आप फेल होने वाले, सिंपल सी बात। बाद में कोई भी चीज नहीं होने वाला, जो होने वाला है अभी है। आज जो डिसाइड करूंगा उसको सुबह मैंने डिसाइड किया, वो कंप्लीट करके ही उठूंगा, खत्म। नाउ दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन। तो अच्छा, मैं कहना क्या चाह रहा था कि सो आई गॉट सम फीडबैक, कि सर मुझे मुझे ऐसी तैयारी करा, हेल्प मी टू डू प्रिपरेशन। एंड मैं ऐसे कोई ऑनलाइन कोर्स या ऐसा कुछ तो नहीं पिच कर रहा, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज द स्टडी एक्चुअली। तो बट आप अपने टाइम के हिसाब से, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई सॉरी कि मैं नहीं कर पाया, बिकॉज ये फीडबैक मुझे जब मिला, और आई वॉज हैविंग माई ओन challenges also to develop, and I think I was communicating with multiple of you also in that matter. But the intention is that before you go for मैंने all this subject का एटलीस्ट 5 से 10 लेक्चर आपको जो है लेक्चर लाइव होगा, वो पेपर व्यू होगा। अगर वही 10-20 रुपए का कुछ होगा वो पेपर व्यू पे, और वो मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। तो अगर आपको उसका लेक्चर जानना है आप लेक्चर जानिए, आप अगर उसका प्रैक्टिस बुक करना है आपका प्रैक्टिस बुक करिए। एंड अगर आपको उसके साथ उसका रिविजन शीट मिलेगा, वर्कशीट। द वर्कशीट इज समथिंग विच लाइक फिल इन द ब्लैंक्स और नोट मेड होता है, वो आप बार बार उसको प्रिंट आउट निकाल के आप रख सकते हो, लाइक दैट। So like that, I'm going to create for the entire prelims sessions. Okay. So ऐसा नहीं कि जैसे मैं स्कूल के जैसा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वही क्वेश्चन में पूछ लूंगा, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। पढ़ाई और एंटायर रिवीजन है। टेस्ट जो है वो एक ट्रेंड और पैटर्न को देख के बना है। बट पढ़ाई हमको जितनी करनी है और कितनी करनी है वो भी मुझे अपने आपको बताऊंगा। So you will have sessions, you will have lecture sessions. Apart from these, revision sessions are different, but those are lecture sessions. वो 40-40 मिनट्स का लेक्चर होगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप क्लास में स्कूल में लेक्चर बैठते हो, उसी हिसाब से आपको लैपटॉप पे बैठना पड़ेगा आपके साथ, ऑनलाइन किताब और नोट पकड़ के, और उस सेशन को लेना पड़ेगा। जैसे अगर अभी आप बैठे हो, आपके पास टाइम है, तो आप अपना टाइम शेड्यूल करोगे और करोगे। और टेस्ट रिलीज डे हो चुका है, तो अगर टेस्ट आपके पास है
तो जैसे आपने 5 लेक्चर दिए, जब वो सब्जेक्ट खत्म कर लिया, उसका टेस्ट कंप्लीट किया और आपको कोई चैलेंज आया है, कुछ चीज़ आया, आप उसका एक समरी नोट बनाओगे और मेरे को व्हाट्सएप कर दो। मैं इंडिविजुअल अटेंशन इस तरीके से दे पाऊँगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप मेहनत करो बेटा, पढ़ाई करो बेटा, एग्ज़ाम दो, ये वाला इंडिविजुअल अटेंशन मेरे से तो एक्सपेक्ट नहीं करो। मेरे मेरे मेरा सेल्फ स्टडी का मॉडल है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बच्चा है, परिश्रमी है, पढ़ना चाहता है। इसलिए कॉस्ट वॉस्ट की बात ही नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल लो रखा हुआ है, फॉर दैट मैटर कि उतना रखा है कि वो पढ़ाई कर पाए और उतना इज़्ज़त भी दे पाए। तो मैं ये मेरा थॉट है कि व्हाट मैटर्स इज़ अ, हाउ मच यू आर गोइंग टू गिव टाइम, हाउ मच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। टाइम वेस्ट करने के लिए मैं सब कैसे पढ़े, मैं क्या रिवीजन करूँ, ये तो जब तक पैर नहीं उठाओगे स्विमिंग पूल में या पानी में कूदोगे नहीं, स्विमिंग नहीं आने वाला है। वैसे कितना थ्योरी पढ़ लो, मैंने ये देख लिया, मैंने वो किताब पढ़ ली, मैंने वो ऐसा कुछ नहीं। Until unless you don't do it, then you will not understand मैं क्या सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आप में से अगर किसी ने पहले टेस्ट अटेंड किया है, मेरा नहीं, कोई भी प्रीलिम्स का या कोई भी एग्ज़ाम दिया है, मैंने आज जो भी बोला अभी तक, यू विल बी एबल टू वैल्यू इट। अगर आपने एक भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया, कि यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम दिया नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है ये आदमी क्या बोले जा रहे हैं। अगर आपने दिया है एक प्रीलिम्स और या फिर कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, तो आपको समझ में आ रहा है वो 2 घंटे में क्या, वो 2 घंटे आपके 1 साल को डिफाइन करता है। 2 घंटा चला गया तो अगला एग्ज़ाम लिखने का मौका मिलेगा, नहीं तो साल गया। इसीलिए उसका जो थ्रेट है, वो हमारा चॉइस पे, हमने वो चॉइस किया था, हमें एग्ज़ाम देना है। वो मेरे चॉइस को क्वेश्चन आउट कर रहा है, तूने चॉइस किया था तो उसे नहीं कर पा रहे, ये क्या बात हुई? You chose something and you are not able to do it, then why did you choose it? When you choose it, then give your 100%. You are not giving your 100%, इसलिए नहीं दे। अब उसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे मैंने बहुत किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये प्रिपरेशन किया, नहीं हुआ, मेरे 5 साल बर्बाद हो गए। ऐसे मैंने देखा इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं। यार विक्टिम खेलना बहुत ईज़ी है, बट अगर आप एक्चुअली प्रिपेयर करो और मतलब, मैं नहीं कहता कि ला लोगों के साथ होता नहीं, होता होगा, बट स्टिल यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। मैथ्स का तो सीसैट एक क्वेश्चन आया यहाँ पे कि सीसैट मैथ्स के लिए क्या सॉल्यूशन है? तो मैथ्स का तो सॉल्यूशन ये प्रैक्टिस ही है। तो मैं जो आपको सीसैट, अगर आप देखोगे सीसैट के भी मैं अलग-अलग बुक निकालूँगा और वीडियो सॉल्यूशन निकालूँगा। मुझे किसी बच्चे ने बोला था कि सर आप ऐसे वीडियो सॉल्यूशन निकालो ताकि मैं साथ-साथ बैठ के कर पाऊँ। तो मेरा इंटेंशन यही था कि मैं सारे सीसैट आपको वीडियो सॉल्यूशन दूँ। मैं नहीं दे पाया हूँ पिछले 5 एग्ज़ाम में, बट इट विल यू विल सी दैट गोइंग फॉरवर्ड आई विल चेंज ऑल दैट। प्रीवियस का भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, आपको मिलेगा। आपको साथ-साथ बैठना है। जैसे-जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप मेरे साथ सॉल्व करते रहोगे, आपका ब्रेन खुलता जाएगा। अच्छा, ये सर ने ये लॉजिक लगाया। अच्छा, ये इस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ा। अच्छा, ये चीज़ ऐसा है। अच्छा, ये इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। अच्छा, ये ही है प्रैक्टिस। तो उसमें भी जो टाइम लगेगा, साथ-साथ ही टाइम लगेगा। तो लाइक दैट, ऐसे कोई किताब से तो नहीं है, मल्टीपल क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस होगा सीसैट का। और हर दिन कुछ कैलकुलेशन एक्सरसाइज होते हैं, कुछ बेसिक लॉजिक एक्सरसाइज होते हैं, वो करते रहने का। तो आई थिंक बोलने से ज़्यादा प्रैक्टिस करना इज़ वो वेरी गुड फॉर सीसैट। एंड मैथ्स टफ कौन सा, जैसे अगर कोई पेपर में हमने देखा कि मैथ्स टफ हो गया, तो मैं आपको बताऊँगा बेटा यहाँ पे ये टफ हो गया है। क्यों टफ हुआ? ये इस रीज़न से टफ हुआ। ये 3 लेयर का कॉन्सेप्ट है, कि इसलिए ऐसा हो गया। सीसैट का रिवीजन के लिए मतलब मैं जो भी वीडियो लेक्चर्स बना के दे दूँगा, आप अपने हिसाब से रिवीजन करो। ये लाइव करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए और सबके लिए, बिकॉज़ लाइव डालना बड़ा मुश्किल है, बट मेरे क्लासेस रिलीज़ होते जाएँगे। आप अपने हिसाब से, अपने टाइमलाइन के हिसाब से आप अपना सिलेबस और अपना टाइमिंग लिस्ट बनाओ। मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो आप, एक सेशन ले लो मेरे साथ। मैं ऐसे-ऐसे तुम्हें मेरे रोड मैप प्लान कर दूँ और उस हिसाब से आप करते जाओ। बट सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो सीसैट के ये सारे ही चैप्टर के लिए मैं, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, पेपर व्यू का सेशंस मैं आपको दूँगा, वर्कशीट दूँगा, सब दूँगा। तो वही मैं रिलीज़ करूँगा एंड धीरे-धीरे वो रिलीज़ होता जाएगा एंड यू विल कम टू नो दैट हाउ वी आर गोइंग टू बूस्ट योर सेल्फ स्टडी। तो जो टॉपिक आपका डिफिकल्ट है आप वो करो। मैं नहीं कह रहा सब कुछ करना ज़रूरी है। जो टॉपिक प्रैक्टिस करना है वो करो। किसके लिए क्या है वो नहीं पता, इसलिए मैं तो एक जेनेरिक करूँगा, लाइक दैट। नाउ कमिंग बैक टू द अ अ अ अ, मैंने द सेशन।
So I told you that what I'm going to update in the test series, that I told you about that. Now coming to one of the most important principles which I've observed is the Pareto principle. I think 80-20 principle. आप बहुत लोगों को पता होगा 80-20 principle. What I've realized that जब मैंने इतने सारे पेपर पढ़े, इतने सारे क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए, यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी में जो मैक्सिमम वेटेज जो है ना, 20% ऑफ द सिलेबस से ही मैक्सिमम वेटेज वो उठाता है हमेशा। 80% ऑफ द क्वेश्चन 20% से ही वो उठाते हैं। वो 20% सब्जेक्ट जो है बड़ा हाई डिमांडिंग होते हैं, ऑन ट्रेंड होते हैं। मेरा एक मैं पिछले बिफोर दिस एलिवेट आईएएस जो मैं फेसलेस करता था, वो था एक रिवाइज फॉर ias.com। तो उसमें मैंने 35 डेज रिवीजन प्लान खोला था। हर दिन ईमेल आएगा, ओनली फॉर प्रीलिम्स पे मेरे के लिए था वो। तो हर दिन ईमेल आएगा और 35 डेज का पिछले साल इसमें ही मैंने लॉन्च किया। तो वो जो 35 डेज में जो टॉपिक थे ना, वो ऑल दिस 20% टॉपिक, जो हाई इंटेंसिटी टॉपिक है, जो ऑलमोस्ट हमेशा आते ही, तो हाँ, या उस एरिया से आते हैं कि उस अराउंड से आते हैं, तो वो टॉपिक थे। तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा, जब मैंने एक बार बोला कि हाँ 100/100 के माइंडसेट से नहीं जाना है, तो क्या एग्जाम के माइंडसेट से जाना है? मास्टरी ऑफ हमें ये करना है कि मैं 100% सिलेबस नहीं, मैं सिर्फ 80% सिलेबस करूंगा या करूंगी, और उस 80% सिलेबस को 100% पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, उसी को बार बार रिवाइज करूंगा, उसी को बार बार प्रैक्टिस करूंगा। अगर आपने ये कर दिया, 3 बार प्रैक्टिस कर लिया, 3 बार रिवाइज कर दिया, आप आप खुद जान पाओगे कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है और आप मेंस की तरफ जा रहे हो। मेंस में भी यही स्टोरी है। सो इट इज नॉट, डू नॉट चेज मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं करना है कंप्लीट सिलेबस। आपको पहले मैंने बोला गेम इज प्लेड ऑन स्ट्रेंथ। आपके स्ट्रेंथ एरिया से आप 80% ऑफ द सिलेबस के एरियाज को करोगे। वो 80% में भी कुछ आपका स्ट्रेंथ होगा, कुछ आपका वीकनेस होगा। वीकनेस की तो बहुत कम तरफ जाना है, स्ट्रेंथ को ही बिल्डअप करना है। अगर आपको इकोनॉमिक्स पता है, सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उस इकोनॉमिक्स में 19 क्वेश्चन आते हैं, 19-20 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम 18 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ आप करके आओगे, क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो वैसा होगा प्रिपरेशन। अगर आपका एनवायरमेंट वीक है, तो उसमें से कुछ 8 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो, क्योंकि वो एरिया वीक है। पर जो स्ट्रॉन्ग है वो पूरा तगड़ा होना चाहिए। तो हमको कोई 4 या 5 एरिया में स्ट्रॉन्ग होना है। क्या ये हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री के भी मतलब अराउंड 16-17 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी के अराउंड 18-19 आएंगे, इकोनॉमिक के 18-19 आएंगे, ज्योग्राफी के अराउंड वही 15-16 आएंगे, और फिर करंट अफेयर के 15-20 आएंगे। 15 करंट अफेयर को तो फिर भी पकड़ लो, 2-3 आएंगे क्लियरली, बट बाकी के आपके 4 टॉपिक को आपको तगड़ा करना है और देखना है कि आप कैसे 65 के ऊपर उठो। मैंने टेक्निक भी बताया, RRR टेक्निक। तो ये प्रिपरेशन का मतलब गोल्डन रूल है कि मुझे 100% के पीछे नहीं भागना है। मैं 70% या 80% सिलेबस करूंगा, लेकिन फुल्ली 100% डेडिकेशन के साथ। So that exactly is what your pattern should be for preparation in the next 5 months. You have exactly 150 days in front of you. 150 दिन है आज से। तो उसमें कुछ संडेज होंगे, कुछ सैटरडे होंगे, क्या पता आपका बर्थडे भी हो, एक न्यू ईयर होगा, एक क्रिसमस होगा, एक होली होगा, एक क्या बोलते हैं 14 जनवरी को संक्रांति होगा, और रामनवमी होगा, ईद होगा, सब कुछ होगा। ऑल दैट थिंग आपको पता है, ये सब होगा। और आपकी उसमें वर्किंग हो, आप नॉन वर्किंग हो, आप छुट्टी कितना ले सकते हो, आपका डेली रूटीन क्या है, वो आपको पता है। आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप इंक्रीज करोगे। छोटा रूटीन है, छोटा दिन में अगर 3 घंटा भी दे पा रहे, तो कैसे उस 3 घंटे की एफिशिएंसी ज्यादा हाई रहे, वो देखी जाएगी। डजेंट मैटर, लोगों के पास बहुत टाइम देने से भी कोई पढ़ता नहीं, फेल होते। घर बैठ बैठ के तब बहुत प्रिपेयर करते हैं, फेल होते हैं बच्चे, कुछ नहीं करते। उनको समझ में नहीं आता क्यों फेल हो रहे हैं। विक्टिम खेलना है, मतलब लूप में पड़ गया हूँ सर, एग्जाम ही दिए जा रहा हूँ। बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी दैट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कब आप बहकावे में आ रहे हैं,
कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको ट्रिगर कर दे रहा है, क्या चीज आपको चाह, अरे आप आए ही क्यों थे पहले ये बताओ। अगर आपका गोल क्लैरिटी नहीं है, रोल क्लैरिटी कैसे हो? विजुअलाइज कर रहे भी हो कि सक्सेस के लिए विक्टिम सक्सेस देख रहे हो, क्या देख दुखी मन से कर रहे हो कि क्या है, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। अपने आप को हीरो समझते हो कि अपने आप को दिल टूटा आशिक समझते हो, ये बड़ा चीज है। यूर ओवरकमिंग टू ऑल सिचुएशन की अपने आप को बार बार एक एक्सक्यूज ले आते हो, नहीं मैं तो इसलिए नहीं कर पाया, वो हमारे घर में शादी थी ना, और हम लोग के घर में बैठने की जगह नहीं है, वी आर वेरी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली बहुत चैलेंजिंग है ये सारे परेशानियां, बट हम एग्जाम तो दे रहे हैं इन्हीं को ओवरकम करने के लिए। तो आप कैसे उसको, यही एग्जाम आपका एकमात्र वे आउट टू अ लाइफ है, 40 साल का करियर है ये, एक तरफ दुनिया की तरफ बदलने का शक्ति रखता है, तो उस तरीके का आपका अप्रोच होना चाहिए। एनीवे, देयर आर फ्यू थिंग्स अबाउट एग्जाम व्हिच आई विल टॉक अबाउट लेटर। और एक चीज ये है कि ओवर इंफॉर्मेशन, ये जो यूट्यूब में बहुत सारे, ये किताब रिलीज हुआ है, वो रिलीज हुआ है, ऐसा पढ़ लो वैसा पढ़ लो, 50 सा पीडीएफ आ रहा है, डाउनलोड हो रहा है टेलीग्राम ग्रुप में, ये सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, 100 क्वेश्चन, ये कर लो वो कर लो, ऐसे 50 चीज आएंगे डेविएशन करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको पता है मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है तो ठीक है, अगर आपको पता है आपको डिस्ट्रैक्ट होना है तो आप हो जाओगे। और मेरा कहने का मतलब ये है कि यही सब चीजें जो बाद में ना फेलियर की तरफ, और हम एनालाइज नहीं करते, तो चाहे वो आपका पहला अटेम्प्ट हो या चाहे आखिरी अटेम्प्ट हो, आप कहाँ बहकावे में आ रहे हो, कहाँ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने आप को, देख लो और आज से समझ लो। तो अगर यही है कि आप 5 महीने, वी आर स्टार्टिंग अर्ली, अगर अभी तक आप नहीं कर पाए हो, नो नो वरीज, आप न्यू ईयर से पकड़ लो, एक हफ्ता आप एंजॉय कर लो दिल खोल के, बट अपना स्ट्रैटेजी बना लो, मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे कैसे करने वाला, एंड डोंट डिपेंड ऑन नाइदर मी और एनीबडी, इट इज योर एग्जाम, ढूंढने से भगवान मिलता है। तो आप यू स्टार्ट डूइंग इट, आपके पास टेस्ट हैं, टेस्ट जो टेस्ट का शेड्यूल रिलीज किया गया है उससे मिलेगा, अगर आपको वो शेड्यूल नहीं मिल रहा, आप जिस शेड्यूल में करना चाहे आप करें, लेकिन आप करें, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी पे मैंने आपको, द गेम इज अबाउट स्ट्रेंथ एंड एक्यूरेसी रेट एंड डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। So these are today. This is what I will say that to conclude today's session. That the test series features are. Yeah, I told you that you'll get the revision lectures. You'll have a summary sheet. You'll have practice MCQ books. You will have a timeline to things like that. But ये सब पेपर व्यू पे होगा। इसका मेरा यही एक ही रीजन है उसको करने का ऐसा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप कलेक्ट करके रख लो, कल पढ़ूंगा मैं, कल पे नहीं जाना है। मैंने अगर ऑनलाइन अभी एक्सेस किया तो 3 घंटा लेके बैठो वहां पे एक्सेस करने के लिए, 20 रुपए दोगे, पूरा सेशन पढ़ोगे, पूरा प्रैक्टिस करोगे, तभी उठोगे, नहीं तो 3 दिन में वो चला जाएगा, फिर से रहना पड़ेगा बीच। सो यू हैव टू सी दैट हाउ यू मैनेज इट, इट इज वेरी सिंपल। अगर मैंने आज डिसाइड किया मुझे ये पढ़ना है, मैंने ये चैप्टर चैप्टर पढ़ना है, तो ये नोट मुझे करना है, और लाइक दैट। So that is what I would like to say. My test series is different in that matter. It will be different in that manner. And all area of strength and this thing up to your choice. ये नहीं है कि मैं तो लाइव क्लासेस, भाई क्लासेस तो बहुत है, लेकिन हमको क्या समझ में आ रहा है, हमें क्या पता। तो इसलिए आई वुड से दैट यू डिसाइड योर जर्नी, ऑल द रिसोर्सेज इज देयर फॉर यू। अगर आपने जीएस फाउंडेशन प्लान एनरोल कर रखा है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन, तो मैं कम से कम मैंने जो कमिट किया है कि 25,000 क्वेश्चन तो आपको मैं देने ही वाला हूँ जी, सी फाउंडेशन प्लान में फ्री। तो वो तो छोड़ो, वो आप जिन्होंने पहले किया होगा उनको सारे मेल्स मिले होंगे, जो अभी आ रहे हो, 400 दिन का प्लान है, तो इट्स गोइंग टू टेक टाइम। But otherwise, I told you about availability of books and situation scenarios. So I don't think that आपको कोई challenge होगा कोई भी तरीके से when it comes to preparing. You have to be very clear with your timeline. You have to be very clear with your what you have in your hand, and आपके पास कितने दिन है, कितना दिन आपका क्या है। तो सारे मटेरियल आई थिंक जैसे जैसे रिलीज होता जाएगा आपको मिलता जाएगा मेल में इंफॉर्मेशन, एक टाइम लाइन। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने आप को एक डिसिप्लिन में डालने के लिए। बीच में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, एंड आई वाज अनेबल टू, मैं वॉइस पे मैं बोल ही नहीं पा रहा था, तो मैं क्या ही, जब बोल ही नहीं पा रहा तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं किया मैंने कुछ, अब मेरी खांसी को क्या रिकॉर्ड करना। सो दीज आर सर्टेन challenges which I faced, but now I'm overcome it and I'm like better around that. So my everything you will get information.
तो माय वे ऑफ टेलिंग यू कि अगर आज तक आपने टेस्ट सीरीज को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, कि गाइडेंस नहीं मिल रही थी, कि सर सेशन नहीं दे रहे, कि कुछ नहीं है, तो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस वी आर फेसिंग, एंड आई थिंक वी शुड नाउ लुक एट ए फ्रेश वे कि कैसे हम टैकल करें. बट आई हैव बीन रेगुलर इन गिविंग क्वेश्चंस एंड जो भी सॉल्यूशंस है. So, but my responsibility doesn't end with that. My responsibility is to see that you are studying and cracking the exam and you're in the final list. So, आप उस एटीट्यूड के साथ पढ़ो, उस एटीट्यूड के साथ रिवाइज करो, एंड आपको कोई अदर चैलेंजेस है, एज अ मेंटर आई एम देयर टू हेल्प यू, not just for this exam but for your better well-being also. So you see that you are you're able to when you meet with me or have a session with me, you have something considerable to talk. ऐसे कैसे करेंगे, कैसे होगा, ये कैसे करें, कैसे होगा, अगर आपने किया होगा, सर मैंने किया पर मैं फेल हो गया, तो कैसे फेल हो गया पे मैं ज्यादा अच्छी तरह से बोल सकता हूँ, rather than ओवरऑल ऐसे जेनरिक बोलने के लिए. हर चीज के लिए किताब उठा के पढ़ना पड़ेगा और पेन पेपर लेना पड़ेगा, ये तो कॉमन है. So with that, today's session we end over here. If you have any more questions, please let me know. Uh, you can put it in the chat, or otherwise we are done with our today's session. And thank you very much for being attentive audience live. And with this, I end today's session.